Congratulations on being conferred with the highest of the film industry award, Dada Saheb Phalke Award. Thank you, ma'am. So, if you look back, Mrigya was your first movie, and surprisingly, you won an award for it, a national award. So, I'm sure you wouldn't have expected it also, right? A young boy just started his journey, and from Mrigya to Kashmir Files to Shastri, a recent Bengali movie. How would you see your life, your film journey? My journey has not been on a platter. So long journey, but it's a very, very painful journey, ma'am. Very painful journey. Mrigya, of course, I did not expect, but there are many big actors that time in the competition. But I was hearing that I am also in the league. And suddenly it announced that I got it. It was a great feeling. And of course I thought that my life is made. But no. National award that time has very less meaning in the film industry. Commercially much more, overpowering. So from that to James Bond, it's another big struggle. Then I became the Grandmaster G9. That was my first commercial success. Then came Disco Dancer. That gave me the worldwide fame. Then came my romantic journey with Pyar Jhukta Nahi, and then so on, so on, so on. And now, getting this award with so much of pain, and it looks like now God said, now quit. You deserve it. I've given you so much of pain, now this is for it. Those challenges and ups and downs have made you what you are today, right? Well, everybody has to go through ups and downs. So mine was too much. It's beyond. So, well, now it's okay. आपने ये डिस्को डांसर मूवी के बारे में बोला अभी, वो तो एक कल्ट मूवी था जी। उसके बाद तो जैसे वो इंडस्ट्री का एक नक्शा बदल गया जैसा लग रहा था, बिकॉज वो रशिया में आप जाएंगे वहाँ पे भी आपका इतना क्रेज़ बढ़ा था, एंड आपके ऊपर तो एक कॉमिक कैरेक्टर भी इंस्पायर हुआ था जिमी करके, वो यूएस में बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद जो आपको जो फैनफेयर मिला, जो एडुलेशन मिला आपको, तो एक एयरपोर्ट में एक इंसिडेंट भी ऐसा हुआ, आपको याद होगा। देखिए, डिस्को डांसर तो कोई नहीं सोचा था। एक्चुअली डिस्को डांसर फर्स्ट वीक में इंडस्ट्री ने उसको फ्लॉप करा दी, क्योंकि ये किस किस्म का डांस है भाई, ऑल दिस दे थॉट के समथिंग वेग डांसिंग, बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग डिस्को, सो दैट वाज बियॉन्ड देयर थिंकिंग। But up from the second week, the picture started taking its turn. And it went on to become a legend now, iconic. But first week में फिल्म को फ्लॉप करा दिया था। ऐसा ही मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही, मतलब कोई भी चीज़ मेरे को ओवरनाइट नहीं मिला, नथिंग। बहुत लोगों को ये नहीं जानते कि आप ब्लैक बेल्ट होल्डर है मार्शल आर्ट। आई डिडंट Shotokan style में। Actually, I was a Greco-Roman champ in wrestling in Bengal. Greco-Roman style में मैं कुश्ती सीखा था, wrestling. Then came back and I learned filmy way of fighting. Filmy way of fighting. That was most important, because film में fighting is no fighting. Fighting, but it's no fighting. This is an art. You have to learn it. So, which one do you enjoy the most? Both. Both, right. You also hold the Limca Book of Records. Yes. Of having the release of highest number of movies. 19 movies आपके release हुए 1989 में.
Yes, I hold the, एंड आज तक वो रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया है. yes. तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड. आई होल्ड दैट, यस. आपके नाम पे ऐसे बहुत रिकॉर्ड्स हैं सर. आप तो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे 80s में. From 94 to 99 as one of the highest taxpayer of India. तो आपके नाम में तो बहुत रिकॉर्ड्स हैं ऐसे. तो आप जब आप मुड़ के देखते हैं आपके जर्नी, आपने बोला बहुत दर्द से भरा हुआ था, कभी आपको लगता है आप अगर आप थर्ड पर्सन की थ्रू आप उनकी नज़र से देखते हैं मिथुन जी को, तो कैसा देखते हैं आप, कैसे देखते हैं उनको? मुझे नहीं लगता वो देख पाते, ये अंदर का दर्द नहीं देख पाते. देखिए मैम, एक बात आपको बताएं. एक लड़के को आप रास्ते में आते जाते आप उनके कॉम्प्लेक्शन के बारे में मजाक उड़ाए, ए कालिया जा रहा है, ए कालिया, उसका जो दर्द है वो आप ऊपर से नहीं दिख पाएंगे. तो मैं भगवान से कहता था, भगवान मेरा रंग क्यों नहीं चेंज किया तूने. फिर एक दिन सोचा कि क्या करें, मैं रंग तो बदल नहीं सकता. तो मैं सोचा तो मैं तो डांस करता हूँ, मैं पैर से डांस करूँगा, और ऐसा पैर से डांस करूँगा कि लोगों की नज़रें मेरे पैर के सिवा ऊपर ना दिखे, मेरे रंग पे ना जाए, लोग मेरे सिर्फ पैर को देखें. और वही मैंने किया. मैंने पैरों से डांस किया, लोगों को दिखाया कि डांस ऐसे भी होता है, और लोग मेरे रंग को भूल गए. तो उसके बाद मैं हो गया द सेक्सी डस्की बंगाली बाबू. तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो. गाओ, आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर. कहीं ऐसा लगता है कि जब तक वो दर्द नहीं होता आप ये फाइन ह्यूमन बीइंग वो नहीं बन पाते बोलते हैं. वो सच होगा ना शायद, वो छल नहीं आएगा बोलते हैं जब तक आपको ये ह्यूमिलिएशन नहीं होता है, इंसल्ट नहीं. अगर उसके बगैर भी तो हो सकता है, वो क्यों नहीं हुआ. ऐसा नहीं कि एक ही तरह के, उसके बगैर भी हो सकता था. लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया था. हर वक्त कोई ऑफिस में जाना, ऐसे जाओ 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 यार, ये सब बंगाली लोग क्या हीरो बनेंगे, ये सब बहुत सारी, मैं उस सब चीज़ को दोहरा के और अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहता. जो हो गया हो गया. अभी जो मिला है मैं समझता हूँ कि वो सारे दर्द को भगवान ने समेट के बोला कि बेटा दैट्स योर्स. हमने आपके मूवीज़ बहुत इन्जॉय किए. तो वो टाइम पे मुझे इतना वो डेप्थ नहीं पता था. जब अगर मैं आपकी मूवीज़ अभी देखती हूँ, विवेकानंदा में आपने एक शानदार किरदार निभाया रामकृष्ण परमहंस जी का, इतना वो सच्ची तरह से आपने उसको निभाया कि अब जब वो स्क्रीन पे देखते हैं ऐसा लगता है रामकृष्ण जी स्वतः लग रहे हैं. वो एक सही बात है. तो मैं जब रामकृष्ण परमहंस कर रहा था इतना कंफ्यूज था मैं, क्योंकि किस तरह करेक्टर बनाऊँ ना. मैंने उनको कभी देखा है, जो देखा है जो किसी ने प्ले किया है. सो दैट वाज टू मी इट वाज, पढ़ा मैंने रामकृष्ण कथा मित्र, वही पढ़ पढ़ के उनकी आदतें, उनकी थोड़ी सी ये, फिर भी दिल नहीं मान रहा था. तो मैं एक दिन भगवान के पास गया, ठाकुर के पास. ठाकुर मुझसे नहीं होगा आपका रोल, आप मोरे में समा जाइए, यू प्लीज़ कम इन टू मी. एंड आई थिंक ही केम इन टू. आवाहन हुआ तो उसके बाद तो आप छा गए. तो जब वो उसका शूटिंग चल रहा था, आपके दौर तरीके उनकी तरह थे, आपके आलोचना, आपका यस, जो ये एकदम जीवन शैली था? एकदम ऐसे ही हो गया था. ये बेंगलोर में ही शूटिंग हुई थी. स्टूडियो का नाम भूले जा रहा हूँ, बासवा राज. एनीवेज यहीं पे सेट लगा था. तो मैं वो शॉट देने के बाद बाहर आके बैठता था, एक कुर्सी लेकर और सिगरेट पीता था. एक अलग से बैठता था मैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करे. तो शाम को मैंने देखा कुछ 6-7 लेडीज़ दूर से मुझे देख रहे हैं, थोड़ा दूर से. मैं समझा वो देख रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस को देख रहे हैं. तो मैं सिगरेट पी रहा था. अचानक वो हिम्मत करके मेरे सामने आए, फूल लिए और मेरे पैरों में रख दिया. और रखने के बाद उन्होंने क्या कहा कि देखिए हमको मालूम है
अब मिथुन चक्रवर्ती है जो रामाकृष्ण परमहंस का रोल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे ठाकुर है, हमारे दिल में बैठे हुआ है। आप सबके सामने सिगरेट मत पीजिए, बहुत दुख होता है। मैं उसी वक्त ही सिगरेट फेंक दी और कभी बाहर आके सिगरेट नहीं पी। मैं सब बाथरूम में जाके सिगरेट पीता था, फिर बाहर आता। सदर्न फिल्म इंडस्ट्री, अभी आपने बोला यहीं पे शूटिंग हुआ, तो सदर्न फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया आपने, बहुत मूवीज़ किया। हाँ, मैंने कर्नाटक में विलेन किया था, तेलुगु में मैंने गोपाला गोपाला, और तमिल में भी किया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और अभी फिर से मैं और प्रकाश फौजी कर रहे हैं तेलुगु में। आपके अब तक के सफ़र में आपके फेवरेट को स्टार या फेवरेट डायरेक्टर कौन है? ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, सब अपने अपनी जगह में महान है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में महान है। बाकी फेवरेट को स्टार बहुत है, किसका नाम लूँ? मोर देन 375 फिल्म्स ओल्ड and is almost going to be over 400 any days. As long as I'm working. अगर ऐसे ही इंजरी होती गई तो शायद नहीं होगा। इंजरी कैसे हुआ? ये एक मिस्टेक हो गया और 10 फीट ऊपर से गिरा, तो ये 7 फ्रैक्चर हुआ है। 7 घंटे का ऑपरेशन हुआ, 7 घंटा में सेमी कोमा में चला गया था। सो आपके इस सफ़र में आप लाइफ में देखे या फिल्म इंडस्ट्री में, हु इज़ दैट वन पर्सन जो हु इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर यू, दैट बोलते हैं ना 2 AM फ्रेंड हु आई कैन कॉल एट 2 AM? But he gone, he passed away. गौतम दास मेरा सब कुछ था वो। और एक फ्रेंड है गौतम गुहा, दोनों ही गौतम गुहा, जो मुझे रास्ते से उठा के लेके आया। बिकॉज जब बॉम्बे आया, सानी दिखा कोई बंगाली में बात कर रहा है, तो मैंने कहा कि मेरा सामान ज़रा रख दो, एक दिन सोने देना। मैं तो उसको क्या लगा, वो मेरे को घर ले गया। देन आई स्टेड। देन अनदर फ्रेंड कॉल्ड विक्रम बंगेरा, जो उसने मुझे माटोंगा जिमखाना में मेरे को मेंबरशिप करके दिया, ताकि मैं सुबह उठ के दांत मजूँ, बाथरूम करूँ। सोने की जगह नहीं, सोना कभी इधर उधर, कभी 5 गार्डन में। बहुत ही तकलीफ के ये दिन। सब हुआ मुंबई में? कभी फुटपाथ में ही सो गया। सपने तो थे? मैं सपनों को कभी सोने नहीं दिया। मैं सबको बोलता हूँ खुद सो जाना, लेकिन सपने को सोने नहीं देना। मैं खुद सो जाता था, लेकिन मेरे सपने को मैं कभी सोने नहीं दिया। क्या सपना था वो टाइम पे? आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? मैं आई विल मेक समथिंग, मेरे फैमिली को मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन इतना बड़ा सपना नहीं दिखता था। कभी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा? नहीं, मैं आया नहीं था बॉम्बे कोई फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए। आई हैड ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू लीव कैलकाटा, दैट यू मस्ट बी नोइंग इट। सो मैं सोचा था फिर वापस जाऊंगा, लेकिन डेस्टिनी हैड समथिंग रिटन फॉर मी, आई हैड टू स्टे बैक। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट मेरे कोई दोस्त ले गए, वहाँ पता चला ये एक्टर बनते हैं। मैंने अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम मुझे रिजेक्ट किया, क्योंकि आई स्पोक द ट्रूथ, बिकॉज दे सेड आर यू पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड। आई सेड यस, so they rejected me because that was a band party that time. फिर second year they took me and then on and on. इतने सफ़र में वो क्या चीज़ जो आपके साथ रहा है, वो क्या लेसन, क्या सीख मिला है? मेरा सपना और कुछ नहीं। जितनी भी तकलीफ आए, मैं अपने सपने को सोने नहीं दिया। I slept, but not my dream. You have been involved in lot of philanthropic activities, hospitality, education में भी है, art में है। आप कभी एक जगह पे रहने वाले नहीं है, एक रॉक नहीं है, आप एक पानी नदी है। तो किससे आप ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आइडेंटिटी है आपका? आप सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं। अपना फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में कभी बोला ही नहीं। मैं ड्रम नहीं बजाता हूँ कि देखिए इसको दिया, उसको दिया, फ़ोटो खींचो, किया ही नहीं। बट अगर आप थोड़ा सा अंदर जाएं तो देखिएगा,
मैं सब पूजा में सब फीता काटता था, जो पैसा मिलता था मैं एक जगह जमा करता था, एंड देन आई यूज्ड टू गिव इट अवे। उस तरह से मैं 3,500 बच्चों को पढ़ाया, और उसमें से सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, कमेंडेबल। प्लस ये सब ऑपरेशन अभी स्टिल ऑन। तो लेकिन उतना कमाता नहीं अभी कमाई कम हो गई। देन आई फॉट फॉर द थैलासेमिया, nobody knew what thalassemia is all Yeah, I'm about. aware of it, sir. I went to the gully to It has no cure. make them known that there is a bimari called thalassemia that can be cured. It has taken a bigger place. Government has recognized it this way. Plus education, plus medical, plus even industry, those heroines, those who are trying to come up, and I won't take names because I feel very small. They have become all superstars. I helped them to grow. आपने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया था, सिंटा, Amra. आमरा, वो दैट सिंटा was- which is Cine and TV Artists Association. So that is different. Amra is a social organization. From there, I did all these philanthropic activities. I was the chairman of the labor union film industry for 30 years. That union was of 7,000 rupees. When I left, it has 30 crores in the bank, one of the richest. Now it is going on, it has become more richer. Then I was the president of the Actor Association. That is also I did something, I collected fund. So we have made a building called Sinta. That is in Bombay now, big one. क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आपने इतना जो काम किया है, फिलॉन्थ्रोपी भी, कहीं आपके दर्द ही वो इंस्पिरेशन था आपके लिए? Yeah, it was my inside. कि और लोग मेरी तरह दर्द ना सहे। Exactly. लोग हंसते थे, लोग बोलते थे क्यों इतना टैक्स देता है। जब पहली बार मैंने 1988 में मैं हाईएस्ट टैक्स फेयर हुआ था, फर्स्ट, देन 5 consecutive ईयर, तो लोग हंसते थे क्या तुम टैक्स देता है। तभी ब्लैक मनी में इंडस्ट्री चलती थी, लेस वाइट मोर ब्लैक, और मेरा अपोजिट था, मेरा सब वाइट चाहिए। तो मैं बोलता कि मैं इसलिए देता हूँ कि कहीं हिंदुस्तान में किसी कोने में और एक मिथुन चक्रवर्ती है, मेरे टैक्स देने से शायद खाते लोग खा लेते भी थोड़ा सा पहुँच जाए। सो आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड। Who is the person behind your styling? आपके ये स्टाइल आइकन जैसे आपने, इट हैज हैपेंड, कॉन्शियस एफर्ट था नो दिस हैज हैपेंड, जस्ट हैपेंड? केप्ट हैपनिंग। देखिए सूट के ऊपर कोई मफलर पहना क्या, नहीं ना। एक दिन सूट लेके आया, मैंने मफलर पहन लिया लंबा, वो स्टाइल हो गया। स्टाइल हो गया। आप मानेंगे नहीं, ये जो जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, वो जब पहुंचा मैं सेट पे, जो पैंट दिया वो छोटी होगी, लग ही नहीं रहा था। तो मैं एक ट्रैक सूट पहना हुआ था, ट्रैक सूट पहना, लॉन्ग बूट पहना, एक रेड बनियान पहना, एक शर्ट पहना, उसी में गाना कर दिया, वो स्टाइल हो गया। जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। इसी तरह मेरे स्टाइल सब होते चले गए, मैंने कोई प्लान करके नहीं किया। एक्चुअल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता था किशोर बजाज, बड़ा साहब, ही इज़ नो मोर नाउ, बट ही इज़ द फर्स्ट वन हु यूज्ड टू डू दैट फॉर मी। जैसे आप जो भी पहनते थे वो ट्रेंड हो गया। अभी आपने जो कैप पहना है, इट इज सो अट्रैक्टिव, इट लुक्स यूनिक। सो आई वाज वंडरिंग हु कुड बी द इंस्पिरेशन। सो इट्स So this is Che Guevara. हाँ, Che Guevara, and देखिए ये जैसे साइड लॉक है, दैट इज़ माय लैंडमार्क। साइड लॉक कट कर दिया, पूरा हिंदुस्तान ने कट कर दिया। वो भी एक इंसिडेंट, मैं शूटिंग करके बाहर रहा था, एक लेडी, शी वाज फ्रॉम कनाडा, सर तभी नया मतलब जिसको सुरक्षा हिट हुई है ये सब, तो उन्होंने कहा कि आई एम ए ब्यूटिशियन, आई एम ए फैन। मैंने पहली पिक्चर देखी, आई थिंक यू हैव गॉट ट्रेमेंडस टैलेंट एंड ऑल दोस। मैं आपको एक सजेस्ट कर सकता कि व्हाई डोंट यू कट योर साइड लॉक,
I said, what? She must be making fun of me. I mean, side lock cut kar do. But your face will look longer, you will look fantastic. चली गई. इतना बड़ा साइड लॉक था. तो नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा सा कट कर दिया. कट करके देखा थोड़ा चेंज लगता है. Not bad. फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा और कर दिया. अरे यार अच्छा लगता है. फिर पसंद अपने अपनी पिक्चर में यहाँ तक किया, यहाँ तक रखा. So terrific. And the next was stuck So out. it stayed with you, And now that became your identity. style. So when we look at you, आपको जब देखते हैं आपके मूवीज़ में, आपकी आंखों में दर्द भी है, बट वो बचपना भी है. तो वो बचपना, वो आप जो एक्सपीरियंस करना चाहते थे वो नहीं हुआ, तो आपने वो फिल्म में दिखाने की कोशिश की या वो अंदर था? हिडन किड बोलते हैं, हिडन चाइल्ड. ये आप बोल सकते कि आई एम बेसिकली नॉटी. मैं बेसिकली थोड़ा मिस्टीवियस हूँ. नॉटी मतलब मिस्टीवियस. तो सब हीरोइन के साथ मजाक करना, ऐसे टाइम पास करना, ऐसे ही चल जाता था. लेकिन कोई डेलिबरेटली मैंने कभी कुछ नहीं किया है. आई हैव नेवर डन, प्लान करके कभी कुछ नहीं किया मैंने. आपने अग्निपथ में वो जो रोल किया, वो भी इतना हिट हो गया, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. वो भी सेम. मैं एक 4th ग्रेड कॉरपोरेशन जो झाड़ू देते ना, उनके रूम में पेइंग गेस्ट रहता था. 75 रुपीज़ दे के ज़मीन पे सोने का, और खटिया में सोने के लिए 150 रुपया. तो मेरा एक जो माउस होता था वो एक केरालाइट था, 150 रुपीज़ दे के सोता था. मैं 75. एक दिन रात को मुझे इतना बड़ा चूहा काट दिया और खून खून खून. मैं उठा रात को, किधर धो के किसी तरह कपड़े से, छोटा कपड़े से बांध के रात भर जगता रहा. इतना काट दिया है. खैर सुबह उठा, वो जो पार्टनर था वो तैयार हुआ, ऑफिस चला गया, और मैं खटिए पे बैठा और मुझे नींद लग गई. मैं सो गया. बट सो बैड लक, वो लंच टाइम में वो वापस आ गया. आके देखता है उसके खटिए पे मैं सोया हुआ हूँ. उसने मारा एक लात, और तभी उसी जो लैंग्वेज में बात की थी उसी को मैंने कॉपी किया. क्या रहा, मैं 150 रुपीज़ दे के इधर सोई गई है, और तो 75 दे के मेरे खटिए में सो गई. फिर जो गाली वाली दी, वही चीज़ को कॉपी करके मैंने अग्निपथ कर दिया. So you're the recipient of the most prestigious Dada Saheb Phalke Award. So journey from a young boy, Gauranga. Yeah. So not many people know this also, right? So Gauranga, how do you identify with that name? Gauranga is my birth name, but then from the college side, as I told you, I was a very popular guy, mischievous. They used to call me Mithu. Mita se mithas, mita se mithun. The sweet, sweetest, sweetest is Mithun. How would you sum up your journey, sir? My sum up my journey is that fight. Fight. Don't lose hope. If I can make it, you can make it. Could you please share something about your family? My family is, my dad, mom just passed away. 1 year back my mother passed away, 1 year back father. I have 3 sisters. And my wife is an actress, as you know, Jogita Bali, but she doesn't act anymore. I've got 3 sons and a daughter. 2 children in America. My middle son and my daughter is in America. And 2 are here, all acting in films. That's it. And 18 four-legged children right now. You are known to be always on the move. So what are your future plans, visions? No plan. I don't plan. You just take it as it comes. He decides. So you are a believer in God. Oh, I am a believer of Mahadev. In Kolkata there is a very small lane. Inside there is a very old temple. Inside there is a 10 foot and 5 feet fat
Shivalinga. I call him a gentleman. So I go to him and he says, gentleman, anything for me. So that's the way.